گر درایس آب نٹس نوٹ پھٹو مالنیو یا دیتوم نٹس نوٹا نت نٹ ہار مالنیو حب کوتو وونمت ہے نا چکو بال اپالہِ بہٕ سے بال یپالہِ ژےٚ کیٛازِ گٔیا میٛٲنۍ دٕے ہتا چونٕے چھس بہٕ باغ تہٕ ژٕے ولو چھاوان ژےٚ کیٛازِ گٔیا میٛٲنۍ دٕے حب خاتون کو ہم ایک اونچا درجہ دیتے ہیں موسیقی میں غزل میں پوئٹری میں اور اس کی قابلیت پر ہم داد دیتے ہیں. ہم آج بھی ہندو ہے یا مسلمان کشمیر میں حب کوتون کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں. آپ کے راجے مہاراجے پہلے ہی ہتھیار سرنڈر کر گئے. جہاں اس کی لڑائی ہوئی آپ کے جتنے بھی راجے مہاراجے تھے ہندوستان میں الٹیمیٹلی دے کوڈ ناٹ اسٹینڈ بفور اکبر's فائٹنگ آرمی. آپ کی بات سن کر کہ کل کوئی بی جے پی پارٹی کے قائد اسپوکس پرسن یا جو بھی ان کی پارٹی کے ذمہ دار لیڈر ہے انٹرویو میں کہا جو آپ نے مجھے ابھی سنایا تو جو میں نے سنا وائرل ہوا ہے کہ اسپوکس مین صاحب پارٹی کے ایک ذمہ دار اسپوکس مین ہونے چاہیے کسی بھی پارٹی کے. جو بھی اسپوکس مین ہے ترجمان اعلیٰ وہ ساری پارٹی کی فیس کو امیج کو آئیڈیالوجی کو نظریہ کو حکمت عملی کو ٹیکٹکس کو اور پیپلز اویئرنیس موومنٹ کو ایک ایسے طریقے سے سندر طریقے سے پیش کرتا ہے تاکہ اس پارٹی کی امیج دلوں میں ایک جگہ لے لے. جنتا جناردن ہے تو یہ اسپوکس مین ہے تو یہ وائرل ہوا ہے تو آپ نے مجھے بلایا اس پر کچھ کومنٹ کرنے کے لیے. میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بھائی کشمیر غلامی کے دلدل میں 1500 لاسٹ ایرا 15th سنچری جب مغل بادشاہ اکبر نے کشمیر پر اٹیک کیا اور کشمیر کو قبضے میں لینے کی کوشش کی تو کشمیریوں نے اس وقت اوڑی اور شپین کے پہاڑوں پر چھوٹی سی اسٹیٹ تھی نیشن تھا کشمیر ایک چھوٹا نیشن تھا مگر کشمیریوں میں سوجھ بوجھ سمجھداری لڑنے کا جذبہ اور جنون اور قوت ارادہ اتنا مضبوط تھا. یوسف شاہ چک ہمارا بادشاہ تھا لاسٹ کشمیری رولر تو اس کو جو فوج ہم نے بنائی تھی کشمیریوں کی جس پر ہمیں پراؤڈ ہے فخر ہے کہ للتا دتیا سے لے کر آج تک ہماری فوج نے چاہے سینٹرل ایشیا جیت کر آئے سارا چاہے پنجاب سندھ افغانستان تک کانکر کیا للتا دتیا نے اس کو سنبھالا گفت پیریڈ میں بھی اونتی ورمن نے بھی. تو اس کے بعد جب یوسف شاہ واز دا لاسٹ رولر تو اب کشمیر اور کشمیری آرجن کا کشمیری ہمارا بادشاہ راجا تھا. تو اس وقت اکبر آیا اتنی بڑی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اکبر دی گریٹ اکبر اعظم اس کو کہتے ہیں. تو ہوشیار خبردار بادشاہ سلامت تشریف لے آ رہے ہیں تو سارا دربار کھڑا ہوتا تھا سجدے میں. تو اس جیسے بادشاہ نے جب یہ غلطی کی کہ میں کشمیر کو اپنی غلامی میں لاؤں گا تو اس کو ریزسٹنس موومنٹ اتنا ہندوستان کے اتنی اسٹیٹوں میں اس قدر نہیں ملی جو اس کو کشمیریوں سے ملی. تم سند ہس دیتے سے دب بدت ہاتھی تھے اس کی فوج کو گرا دیا اور وہ راجہ بھگوان داس اس کا کمانڈر ان چیف آرمی تھا. راجہ مان سنگھ کا فادر جو اس کا آرمی چیف تھا راجہ بھگوان داس وہ مجبور ہو گیا کشمیری رولر یوسف شاہ چک کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے اور اس نے اس کو دعوت دی دہلی آنے کے لیے. تو اس کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہم نے ڈیفیٹ دی. تم سند ہس دب دتمت بدت. یہ کشمیری بہادری ہمیں خود نہیں آئی. یہ 5000 سال ہماری ہسٹری
हमने अपने नेशन, अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपनी कश्मीरियत, बुलंद तहजीब और सबसे बड़ी शाइनिंग फिलॉसफी कश्मीरियत को हमने इस उरूज पर पहुंचाया था कि उसको नेगोशिएशन के लिए बुलाया धोखे से, वो चला गया। ही वॉज एडवाइज्ड बाय हिज दरबार कि ये कोई फ्रॉड ना चले। बहरहाल उस वक्त यूसुफ शाह बादशाह था, उसने कहा मैं जाऊंगा, एंड ही वॉज अरेस्टेड देयर, और सारी उम्र उसको पटना जेल में रखा व्हाइल ही पास्ड अवे। सुनिए, तो इस सिलसिले में फिर कश्मीर में उसका दाखला शुरू हुआ मुग़ल बादशाह का। मुग़ल बादशाहों ने उस वक्त कश्मीर को कॉन्कर किया और हम ग़ुलामी में दोबारा जंजीरों में फंस गए। अब सवाल यह है कि शेर कश्मीर पर इसने एक ये दिया। एक तरफ से तो आप कहते हैं, जसरोटा साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान को भी मुग़लों ने ग़ुलाम बनाया, हम भी कहते हैं हमको भी उसने ग़ुलाम बनाया। आपके राजे महाराजे पहले ही हथियार सरेंडर कर गए। जहाँ उसकी लड़ाई हुई, आपके जितने भी राजे महाराजे थे हिंदुस्तान में, अल्टीमेटली दे कुड नॉट स्टैंड बिफोर अकबर्स फाइटिंग आर्मी और अकबर्स मेथड ऑफ वॉरफेयर को, और सरेंडर करके फिर वो स्टेटें, वो बड़ी बड़ी स्टेटें हिंदुस्तान की जो अकबर आज़म की सल्तनत में दाखिल हो गई। वो लास्ट पर हमारे पास आया, हमने फाइट दे दी। फाइट में उसके हाथी तो और ये घोड़े पूरी पहाड़ी से गिराया। अब ये लड़ाई लड़ने का टैक्टिक्स है, सुनिए। वो नवंबर में आया, राजा भगवान दास की क़यादत में मुग़ल फौज आई नवंबर में, विंटर शुरू होता है। हमारे पास दो बड़े जनरल हैं कश्मीरियों के पास, जनरल विंटर एंड जनरल मड। विंटर जब आता है, बर्फ़ पड़ती है तो कीचड़ ही कीचड़ सड़कों पर होती है, और माइनस टेम्परेचर में हम एक्सपर्ट थे, लड़ाई किस तरह लड़नी है माइनस टेम्परेचर में। ऐसे तिमन दोन बनावान मशीद, तथ मज हमाम बनावान, हमामन मज दोस लड़ान सोन फौज मुग़ल फौज सर पत शामस तो हमामन मज से खोर गरमावान। अकबर सद फौजस यह तजुर्बे न तम जानान सर्दी किस तिमन गो शू फट तिमन खोर, तिम हेक लड़थी। तो हमें जनरल विंटर और जनरल स्नो, जो हमारे पास दो बड़े जनरल कश्मीरियों को अल्लाह ताला ने अता किए हैं, हमने इस दावपेच का इस्तेमाल करके मुग़लों को शिकस्त दे दी। धोखे से उन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा कर दिया, और फिर उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब, फिर बहादुर शाह ज़फ़र तक उसका राज रहा, जब तक अहमद शाह अब्दाली ने मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान में गिराई, और फिर उसने अहमद शाह अब्दाली ने फिर कश्मीर को कब्ज़ा करके हम भी गुलाम में आए। मगर याकूब चक, दुनिया में सबसे पहले गुरिल्ला वारफेयर का आगाज़ कहाँ से हुआ? दुनिया में हम कहते हैं ना गुरिल्ला वारफेयर सबसे पहले लेनिन ने शुरू की, रूस में ज़ार के ख़िलाफ़ रूसी इनकलाब हुआ ना, आर्मड स्ट्रगल हुई, तो ज़ार शाही को नेस नाबूद करके रशिया ने सोशलिस्ट रिपब्लिक कायम किया, लेनिन मार्क्स। चाइना में माओजेडुंग ने 35 साल आर्मड स्ट्रगल लड़ी चंगाशा के खिलाफ, वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ, जापानीज अग्रेशन के खिलाफ। तो उसने 35 साल फौज बनाई, 1 लाख है ना, रेड आर्मी जिसको आज कहते हैं। उन्होंने भी जापान को भी डिफीट दी, चंगाशा को भी, और बरतानी साम्राज्य को, और चीन आज़ाद हुआ। उससे शिवाजी मराठा आया, उसने भी गुरिल्ला वारफेयर लड़ा मुग़ल दौर में। वो भी आज शिवाजी मराठा बड़ी इज्जत से उसका नाम लेते हैं कि उसने किस तरह मुग़लों के साथ कई डिकेड्स फाइट करता रहा गुरिल्ला वारफेयर। फिर वियतनाम में हो ची मिन्ह ने भी गुरिल्ला वारफेयर से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य अमेरिका को समंदर बुर्द कर दिया। नपम बम भी पड़ते थे, डायलॉग भी होता था। तो ये है। फिर कोरिया में हुआ,
जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, वहाँ भी तो वहाँ के लोगों ने हथियार उठाकर लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल कर दी कोरिया। इसी तरह दूसरे भी छोटे छोटे मुल्क हैं, हमें उसमें नहीं जाने की ज़रूरत है। मगर सवाल ये है, हमने सबसे पहले गुरिल्ला वारफेयर कहाँ से शुरू हुआ दुनिया में? चे गुवेरा से नहीं हुआ, लेनिन से भी पहले, शिवाजी मराठा से भी पहले। वो हिंदुस्तान में पहली गुरिल्ला वारफेयर शिवाजी मराठा ने लड़ी। तो छत्रपति शिवाजी, उसको फख्र से मैं भी कहता हूँ, सारा हिंदुस्तान कहता है छत्रपति शिवाजी मराठा। तो उस जिनकी आज पार्टी है शिवसेना, है ना, तो उसी के नाम पर है। बाल ठाकरे साहब उसका पैरोकार था। अब सवाल है कि सबसे पहले दुनिया में गुरिल्ला तरीके से जंग लड़ने का हुनर यूसुफ शाही चक का बेटा याकूब चक ने शुरू किया, गुरिल्लास बनाना। और 37 साल, अकबर ने 50 साल रूल किया, 32 साल कश्मीर पर उसका रूल रहा, 32 साल में 27 साल 17 साल याकूब चक गुरिल्ला वारफेयर लड़ता था अकबर की फौजों के साथ। इसको बहादुरी कहते हैं या बुजदिली कहते हैं इसको। अब जब उस यूसुफ शाही चक को जेल में रखा, तम खानदान ये वो बड़ी मशहूर जो कहते हैं ना हब खौतून, है ना, सत वन ये सह न्यूक जेल, तुझको बाल अपारि बसे बाल अपारि से क्यों से गया मेन दी, हता चोन छस ब बाग ती वलो छावान से क्यों से गया मेन दी। हब खातून को हम एक ऊंचा दर्जा देते हैं मौसीकी में, गज़ल में, पोइट्री में, और उसकी काबिलियत पर हम दाद देते हैं। हम आज भी हिंदू है या मुसलमान कश्मीर में हब खौतून का नाम बड़े एहतराम से लेते हैं। और हमारा म्यूज़िक, हमारा संतूर कल्चर, हमारा ये डांस, ये हब खातून की, हमारे यूसुफ शाही चक की बीवी ने दिया। तमिस हब खातून वोनमुत ये तमिस जुल्म ओस, तम तु वोनमुत गर द्रायस आब नटिस नोटा फुटु माल नो या दीतोम नटिस नोटा नत नट हार माल नो, हब खातून वोनमुत, है ना। तमिस ये तुल नार पे प्योमुत पकुन, तमिस जुल्म ओस। अत सिलसिलस मज ये स्पोक्समैन साहब, मैं बड़ी एहतराम